Hello to all my learners. So today we are going to discuss the answer key of CCT 7. Let us go to the unit 1 first quickly. You have been given three frames और इसमें एक adage जो दिया हुआ है if God closes a window he opens a door और आप third frame में देखोगे there is a dog who says either that or your house is haunted. So first of all let us go to the question number 1. Who would you advise using the adage if God closes a door, then he opens a door? So let us read the four statements. I scored full marks in the music test. इसको तो ज़रूरत ही नहीं है. We have finalized our vacation plans. ये भी success है. I am repainting the doors and windows this week. ये भी अच्छा decision है. I wish I would be chosen for the debate competition. So he has not been selected for the debate competition. दिस क्लियरली शोज कि अगर डोर बंद है इसका मतलब ये नहीं कि विंडो भी क्लोज्ड है. सो दिस एडेज गोज फॉर पर्सन नंबर 4. दैट वाज अ क्विक एंड easy question. Question number 2. Identify the words that appropriately indicate the type of sense of humor displayed the dog in frame 3 of the cartoon strip. तो हमने वो स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ ली है. अब हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच करता है. केयरिंग एंड टंग इन चीक. केयरिंग तो कहीं से नहीं था. इनडिफरेंट एंड इंसल्टिंग. इंसल्टिंग भी इतना नहीं था. राय एंड टंग इन चीक. येस दिस कुड बी एन आंसर. राय एंड इनडिफरेंट. इनडिफरेंट तो नहीं था. सो द बेस्ट ऑप्शन दैट मैचेस फॉर द आंसर इज राय एंड टंग इन चीक. ऑप्शन सी. Konaru Humpy's life. Read the following fact file on Konaru Humpy. Let's read the question first. Choose the dictionary meaning of the word in the title, the Humpy file. Noun, a line of people or things one behind another. Verb, a group of people walk one behind the other, typically in orderly and solemn manner. Noun, a collection of information about a particular person or thing. Noun, a tool with a roughened surface, typically of steel used for something or shaping a hard material. So it goes with C. अगर आप अच्छे से पूरे फैक्ट फाइल को देखें तो इट्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज अबाउट दिस पर्सन. सो वी कैन गो विथ पार्ट सी विच इज़ नाउन. अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर्स गिवन इन द टेक्स्ट. जब आप पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो 2019 में वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन ही वॉन. And if you see in these options, world rapid champion is option number 5, and it clearly takes you to option number B and saves your time to find the correct answer. फिर भी मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करो कि क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है और हो सकता है ऑप्शन बी में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला तो उठा लिया बट मे बी बीच में कोई ऑप्शन गलत है. तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यू शुड check all the options, but if you want to save time, option B, and here option B is also. Question number 5. Based on the text, choose a statement that is not true about Humpy's participation. So let us read the first statement. Won the Vijayawada City Championship in less than 2 years of learning class. So देखते हैं कब उन्होंने स्टार्ट किया था. Began learning chess at age 6 and he was born in 1987. So अगर हम देखें तो 6 साल पे तो स्टार्ट ही किया था तो 1993 में ये फर्स्ट टूर्नामेंट इन्होंने जीता. सो इट इज़ नॉट लेस देन 2 years ऑफ लर्निंग. in fact as soon as he started learning he won the first competition. So हम ये नहीं कह सकते less than 2 years. बाकी इसमें आप देखोगे has achieved a ranking higher than the current one earlier और won the world junior under 20. ये भी करेक्ट है और डिफेंडर वर्ल्ड टाइटल ये भी ठीक है. सो इट विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द करेक्ट आंसर. यूनिट 3 पे हाउस प्लांट लाइफ लेसन्स पे. इसमें बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउस प्लांट लाइफ लेसन्स यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड टू 2 situations. रीड द सिचुएशंस. चलो सिचुएशन पढ़ते हैं. My science project group has 6 members, including me. They all are very quick with understanding concepts and experiments. I am the only one who is usually slow. I really cannot seem to keep up. What should I do? क्योंकि काफ़ी सारे तेज़ हैं तो देखते हैं. पहला है ऑप्शन नंबर 8. सम टाइम्स व्हेन इट फील्स लाइक लाइफ इज़ कटिंग यू डाउन. नहीं ये तो मैच नहीं करता. 5th है इट्स नेचुरल टू आउटग्रो द पॉट इज स्प्राउट. ये भी मैच नहीं करता. ऑप्शन नंबर 4 है हैविंग नीड्स इज सेल्फिश. डू व्हाट्स नेसेसरी टू थ्राइव. ये भी ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 और नंबर 2 है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग लिटिल एक्स्ट्रा सपोर्ट. सो आई थिंक ही शुड गो विद लिटिल एक्स्ट्रा सपोर्ट क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा है. ही शुड रीच आउट हिज मेंबर्स एंड गेट द हेल्प. सो ऑप्शन नंबर डी, नंबर 2.
I took time away from preparing for my quiz competition to help two of my neighborhood friends for their class exam. However, when I needed some help with my science survey, none of them volunteered. I felt hurt and disappointed. Option number 3 says some friends will help you, some friends will use you. हो सकता है. ऑप्शन नंबर 5 है इट्स नेचुरल टू आउटग्रो द पॉट यू स्प्राउटेड इन. नहीं. ऑप्शन नंबर 1 है इट्स बेटर टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस देन टू. नहीं. ऑप्शन नंबर 4 है हैविंग नीड्स एंड सेल्फिश डू व्हाट्स नेसेसरी. तो ये जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ. ओके. उसके बाद बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउस प्लांट लाइफ लेसन्स आइडेंटिफाई द पर्सन सुटेबल फॉर द गिवन एडवाइस. एडवाइस नंबर 1 पढ़नी पड़ेगी पहले. ये है इट्स बेटर टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस देन टू कंपेयर अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ. तो डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट करना है. माई टीचर सेज दैट आई नीड टू वर्क हार्ड एट मैथ. आई ट्राइड आस्किंग माई फ्रेंड्स फॉर हेल्प बट दे आर ऑल. नहीं. माई टीचर सेज दैट आई मस्ट पार्टिसिपेट इन द मैथ क्विज एट द इंटर स्कूल लेवल. आई एम क्वाइट नर्वस एंड डोंट नो. नहीं. My teacher says that I am a math whiz. My problem, however, is that I struggle with art and history, whereas my friends manage these rather well. So he is good at maths and he's struggling with art and history. I wish I could become like others in these subjects too. अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है बाकी स्टूडेंट से. सो कंपैरिजन इज़ नॉट गुड. ठीक है. सो एडवाइस नंबर 1 गोज़ विद ऑप्शन नंबर 3. फोर्थ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक. माई टीचर सेज दैट आई मस्ट बी रेगुलर विद आर्ट क्लासेज एज आई ड्रॉ वेल. माई पेरेंट्स हाउएवर वांट मी टू स्पेंड ऑल माई टाइम प्रैक्टिसिंग मैथ प्रॉब्लम्स. तो ऑप्शन नंबर 3 सही है. इसकी जो विश है कि ही वांट्स टू बिकम लाइक अदर्स, ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई सिंगल हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और कोई एक तरीका नहीं होता ग्रोथ को मेज़र करने का. चूज़ द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द पर्सन नीडिंग एडवाइस नंबर 6. एडवाइस नंबर 6 पढ़ लो पहले जल्दी से. इफ़ यू आर फीलिंग डाउन ओपन द शेड्स एंड लेट इन द लाइट. चलिए. Jadesh was gifted a new bicycle but has yet to learn how to ride it. Nahi. Time has a lot of relatives. Tina coming over next. Nahi. Stanley missed watching his favorite. Nahi. Akram has had a quarrel with his best friend. Yes. So having a quarrel with your best friend could be the worst thing. तो ऑप्शन नंबर 4 इसके साथ जाता है. कौन सा कोड जो है हाउस प्लांट लाइफ लेसन नंबर 8 के साथ जाता है. बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो, लेकिन ऑनलाइन में अगर ऐसा होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी. समटाइम्स व्हेन इट फील्स लाइक लाइफ इज़ कटिंग यू डाउन you actually grow back stronger. So life is putting you down. तो देखते हैं कौन से कोड से मैच करेगा. It is difficult to prove yourself reliable when people are required to wait for you. नहीं. Push yourself because no one else. Yes, you will have to push yourself. The harder you work for something there. नहीं. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. नहीं. ये वाला है push yourself because no one else is. तो life will put you down. Push yourself because no one else is going to do. Option number 2. B part is the answer. So here we end up with the questions related to रीडिंग लिटरेसी. और आपने देखा हम कितनी क्विकली सॉल्व करते जा रहे हैं. हम आपके यहाँ सॉल्यूशंस में भी आप देख पा रहे होगे, आप एक स्पीड गेन करते जा रहे होगे रीड करते ही, क्वेश्चंस को पढ़ते ही, आंसर्स को वो करने में. तो प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से हेल्प करेगी. प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स और यही इसका पर्पस है. इसीलिए हमें बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो भी आंसर्स हमारे गलत होते हैं उसको समझना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपने मिस्टेक्स को रिपीट ना करें. थैंक यू सो मच. नाउ मे बी नेक्स्ट वीक विल बी डूइंग CCT 8. तो इसको पढ़िए, करिए, समझिए. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ थैंक यू सो मच.